So, hello, good morning. Am I audible? ओके। आज प्लान में थोड़ा चेंज है। अ, मैंने आपको एक टेस्ट भेजा है आपके ग्रुप पे, है ना? मिला आपको ग्रुप पे टेस्ट, है ना? दिस इज द टेस्ट। आज आपको टेस्ट सॉल्व करना है और लास्ट में मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, है ना? तो वी विल स्टार्ट विथ वेयर इज द टेस्ट, दिस इज द टेस्ट। गो फॉर दिस। मिला टेस्ट आपको? टेस्ट मिला ग्रुप पे आपको? यस। ओके, सॉल्व दैट टेस्ट। यस, गो फॉर दिस। यू हैव 1 आवर टाइम। 1 घंटे का टाइम है आपके पास। टेस्ट को सॉल्व करें, देन वी विल गो टू द
सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए इसका? यस और नो? यस, चलो करते हैं स्टार्ट। ये प्रेजेंट स्क्रीन विजिबल है ना आपको? ये प्रेजेंटेशन विजिबल है? यस। ओके, this is our first question, and what this question says, the energy of even part of the signal. Okay, what is even part of the signal? We know that even part of the signal is given by x of t plus x of minus t divided by 2, and energy of even part of signal, or I can say energy of any signal, is given by minus infinite to infinite squared area. So x of t is function itself. Let's draw x of minus t. So let's say this is 2, this is 3, and this is 4. तो -2 से स्टार्ट होगा -3 तक. -2 to -3, this will be a negative number, and -3 to 4, this will be a positive number. And can I say this function is, this is value 2, this value is -2, and this function is given by x of minus t. Okay, now whole divided by 2, so this is divided by 2, this is divided by 2, this is divided by 2, and this is divided by 2. या मैं ऐसा भी कर सकता हूं, स्क्वायर्ड एरिया निकाल लूं एक किसी साइड का और उसको डबल कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा? इट्स अ 2 times of squared area of this 1 square into 1, so it's a 1 into 1 plus minus 1 square. This is also divided by 2. This is not divided by 2. This is divided by 2. Amplitude is divided by 2. Minus 1 square is 1 into 3 into 2, 1. So what is answer? 4 joule. The energy of even part, energy in the even part of the signal is 4 unit. I hope this is clear. सेकेंड क्वेश्चन हमने डिटेल में सॉल्व किया था. मैंने आपको बताया भी था कि गॉसियन फंक्शन से फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछे जाते हैं. तो व्हाट इज e टू द पावर माइनस ऑफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर. बताएं इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा? आपने जो निकाला था वो ए टी स्क्वायर का था, ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर है ना, इस बात का ध्यान रखिए. कितना आएगा इसके लिए? वी कैन गो बाय दिस, द फूरियर ट्रांसफॉर्म विल बी minus infinite to infinite e to the power minus of j omega t into e to the power minus a square t square into dt. So you can take, you can say this is a square common, it's a t square plus
j ओमेगा बाय a स्क्वायर इंटू टी। सो मिडिल टर्म का हाफ करें, उसको स्क्वायर जोड़ दे घटा दे, कितना हो जाएगा? j ओमेगा बाय 2a होल स्क्वायर माइनस j ओमेगा बाय 2a स्क्वायर होल स्क्वायर। So can I say this is a square times of t plus j omega by a square whole square? This is multiplied, and minus plus, because iota square will be plus omega square by 4 and omega square by 4 a square, है ना? तो you can say your complete function is minus infinite to infinite. It's e to the power minus a square into t plus j omega by 2a whole square and into minus omega square divided by 4a square into dt. So minus omega square divided by 4a square, and I say this is a times of t plus j omega by 2a equal to, let's say, z. A into dt equal to what? Dz. This integral will be minus infinite to infinite e to the power minus of z square into dz divided by a. So this is, and we know that minus infinity to infinity e to the power minus z square into dz is equivalent to under root of pi. So can I say this whole integral will be pi, under root of pi by a e to the power minus of omega square by 4a square. This is the answer for given question, है ना? तो पिछला जो एक्सप्रेशन आपने याद रखा था कि व्हाट इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 80 स्क्वायर, कितना था? अंडर रूट ऑफ पाई बाय a e टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 4a। उसमें आप क्या करें, a को a स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे तो भी बात बन जाएगी। ओके, in the Fourier transform of 40 divided by 1 plus t square x of omega, then what is value of capital X of 3, है ना? कितना वैल्यू होगा? चलो करते हैं इसको। You know that e to the power minus mod of t having Fourier transform 2 divided by 1 plus t square। अब हमें लगानी पड़ेगी ड्युअलिटी, 2 divided by 1, okay, this is this is 2 divided by 1 plus omega square. Now a duality property, if gt having Fourier transform g of omega, then 2 pi g of minus omega is equivalent to g of t। जहां t है वहां 2 पाई का मल्टीप्लाई करके कितना लग दें, e टू द पावर माइनस ऑफ ओमेगा, दिस विल बी 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर। अब क्या किया जाए? अब किया जाए ये, आई नीड a differentiation property because I want a square of this. So we know that if gt having Fourier transform g of omega, then d by dt of gt is having g omega into j omega into g omega. So I can write this as a j omega 2 pi e to the power minus of omega is equivalent to d by dt of
2 divided by 1 plus t square, which can be written as 2. 1 plus t square as it is 0, and this will be minus 2t divided by 1 plus t square whole square. So we know that j omega 2 pi e to the power minus of omega is having minus 4t divided by 1 plus t square whole square. If I take this minus here, then this is x of omega. Put x equal to 3, you will get the answer. When you put omega equal to 3, this will be the answer for the question. क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? अरे हाँ या ना? मल्टीप्लेक्सर लीव, मल्टीप्लेक्सर नो, जॉनसन काउंटर. क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को क्वेश्चन पिछला वाला? ओके, इट्स क्लियर, फाइन. चलो आ जाते हैं हम यहीं. हाउ टू डू दिस? How to solve this question? Can I say due to virtual ground, this potential can I say okay? Can I say due to virtual ground, this potential is internal terminal short circuited? This potential is 4 volt, and due to virtual ground, this potential is 2 volt. बहुत अच्छे. 4 वोल्ट से 2 वोल्ट तक यहाँ एक करंट फ्लो होगा. दैट करंट विल बी 4 minus 2 divided by 2 is equivalent to 1 milliampere. अब ये 1 milliampere करंट यहां से तो आ नहीं सकता, बिकॉज ओपैम आइडियल है. तो कहां से आया होगा? यहां से आया होगा. एंड दिस पोटेंशियल ड्रॉप जहां से इंटर करेगा वहां प्लस माइनस, एंड दिस इज 1 milliampere into 3 किलो is 3 वोल्ट. एंड ये जो करंट है यहां तो जा नहीं सकता. दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज I माइनस फॉर ओपैम इज इक्वल टू 0. सो दैट्स व्हाई ये पूरा करंट यहां जाएगा, एंड दिस करंट इज हैविंग पोटेंशियल 3 वोल्ट. कैन आई से if this potential is 4 volt and we are going negative to positive, potential at this point is equivalent to 7 volt. और यहां अगर बात की जाए तो ये पोटेंशियल है 2 वोल्ट. यू आर गोइंग प्लस टू माइनस, देन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज minus 1 वोल्ट. अब ओपैम में प्लस टर्मिनल पे अगर कोई करंट जाता नहीं है, तो कैन आई से द पोटेंशियल एट दिस 4 किलो ओम इज 0. तो यहां भी कितना आया? -1. यहां भी आया -1. एंड कैन आई से 7 + 1 8. यहां से करंट मिलेगा आपको 8/5 मिली एम्पियर. ये 8/5 मिली एम्पियर यहां फ्लो होगा, तो करंट विल बी 8/5 into 10, 16 वोल्ट. और ये करंट अगर ये वोल्टेज अगर 16 वोल्ट है, तो आउटपुट इज इक्विवेलेंट टू -17 वोल्ट. -1, वी आर गोइंग प्लस टू माइनस, देयर विल बी a माइनस, एंड इट्स -17 वोल्ट. कोई दिक्कत? क्या क्लियर हुआ आप लोगों को? चलो आगे चलते हैं.
Okay. In the circuit shown in figure, parameters are mu n into COX is 100 microampere per volt square, Vt equal to 1, W equal to this. Okay, okay. आउटपुट वोल्टेज बताना है. सबसे पहले तो can I say due to virtual ground this potential is equivalent to 4 वोल्ट. ठीक है. अब मेरे पास एक टर्मिनल आया है ड्रेन, एक आया है सोर्स और एक आया है गेट. तो मैं बोल सकता हूं Vd इज इक्वलेंट टू हाउ मेनी वोल्ट, 4 वोल्ट. Vs का वैल्यू दिया हुआ है मुझे -2 वोल्ट. Vg का वैल्यू दिया हुआ है 0. मॉसफेट को ऑन करने का कंडीशन क्या है? दिस इज एनमॉस सर्किट. और एनमॉस सर्किट ऑन कैसे होता है? व्हेन VGS इज ग्रेटर देन VTH. Vg का वैल्यू कितना है? 0 इज ग्रेटर देन 1. चैनल ऑन है, बिल्कुल ऑन है. 2 इज ग्रेटर देन 1, चैनल इज ऑन. एंड द सेकेंड पार्ट इज VDS should be greater than or equal to VGS minus VTH. This is the condition for saturation. S से S cancel हुआ. VD का वैल्यू कितना है? 4 वोल्ट. 4 वोल्ट is greater than VG. VG is 0 minus VTH plus 1. तो क्या 4 minus 1 से बड़ा है? बड़ा है. मतलब this transistor is operating in which region? This transistor is operating in saturation. और saturation का करंट कितना होता है? ID is equivalent to 1/2 mu n into COX into W by L into VGS minus VTH whole square. यानी ID का वैल्यू आया 1/2 100 microampere. This is given into 1/2 VGS. VGS is VG is 0 minus 2. It's a 2 minus VTH minus 1 square. Can I say ID comes out to be 100 divided by 4, 25 microampere. ध्यान रखें this current is in microvolt में, microampere. अब ये करंट कहां से कहां फ्लो होगा? दिस करंट विल फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स. मतलब यहां से करंट आया 25 माइक्रोएम्पियर. और अगर मैं 4 वोल्ट पे KCL लगाता हूं तो यहां तो ना करंट आएगा ना जाएगा. दिस इज इक्वलेंट टू 0. तो ये करंट कहां से आया? यहां से आया. यहां से आया तो 25 into 20. This is equivalent to 500 microampere. 25. It's a 500 milliampere, millivolt. 25 into 20 is 500, 0.5 millivolt. तो ये आंसर आया 0.5 वोल्ट. और अप्लाई. हाँ जी. सर W/L का वैल्यू अलग आ रहा है. W/L कितना आ रहा है? 4 10/2.5. अच्छा, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट. तो वैल्यू ऑफ ID इज इक्वलेंट टू 100 माइक्रोएम्पियर. So this potential is equivalent to 200 into 20. It's a 2000. 2000 means 2 volt. So 4 plus 2 is 6 volt. बोलो, क्लियर है क्या? Yes or no? ID हाँ, 200 माइक्रो एम्पियर आ रहा है. 100 आएगा ना. 200 कहां से आएगा? आपने W/L को हाफ लिखा है पहली बार. नहीं. ओके. 1/2 mu n into COX is fine. अच्छा, ये कितना आ रहा है? W/L रेशियो इज 4. 4. अच्छा, तो ये 200 हो जाएगा. 200 हो जाएगा तो ये करंट कितना हो जाएगा?
ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 4, करेक्ट? 4 ही होगा ना। 200 माइक्रो एम्पियर मीन्स 4000 मिली माइक्रो वोल्ट मीन्स 1 किलो से कैंसिल और 4000 4 वोल्ट, तो आंसर विल बी 10 वोल्ट, नहीं 8 वोल्ट। क्लियर है? यस और नो? करंट आया 200 माइक्रो एम्पियर, तो हम ये जानते हैं ना 200 माइक्रो एम्पियर इंटू 20 किलो, 20 इंटू 10 raised to the power 3, तो 200 into 20 is 4000, 4000 into 10 raised to the power 3, 10 raised to the power 3 और माइक्रो 10 raised to the power -6, ये सारे कैंसिल हुए तो कितना वोल्ट आया? 4 वोल्ट। यहाँ 4 वोल्ट था, यहाँ 4 वोल्ट ऐड हुआ, आंसर इज 8। कोई परेशानी? बढ़ाएं जल्दी। कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। ओके ओके, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? ये किया आप लोगों ने? क्या आंसर आया इसका? अच्छा क्वेश्चन था ये। 11/5। 11/5 कैसे करेंगे इसको जरा देखें। if this potential is Vp, if this potential is Vp, can I say the current here is Vp by 1 k? अब ये करंट यहां से तो आया नहीं है Vp by 1 के, ये करंट कहां से आया है? Vp by 1 k, और यहां से करंट आएगा तो दिस विल बी प्लस, ये माइनस, और ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ Vp। यहाँ का पोटेंशियल Vp है, यू आर गोइंग नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आया? 3 टाइम्स ऑफ Vp। ठीक है, और करंट कितना आ रहा है यहां से? Vp बाय 1। ये पोटेंशियल कितना है? Vp, बिकॉज ऑफ वर्चुअल ग्राउंड दिस टू पोटेंशियल्स आर सेम, तो Vp माइनस 3Vp माइनस Vp डिवाइडेड बाय 3, ये करंट आया 2Vp डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहां से लगा देते हैं नोडल। इनकमिंग करंट इज इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर, आउटगोइंग करंट इज Vp प्लस 2Vp बाय 3। So can I say 1 is equivalent to 5 Vp divided by 3, Vp equal to 3/5। Vp का वैल्यू आया 3/5, तो ये करंट कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 3/5, इट्स 2/5। ये यहां से यहां करंट गया 2/5 इंटू 4, इट्स 8/5। ठीक है, और यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा? व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस? Vp का वैल्यू आया 3/5, 3/5 मीन्स दिस इज 9/5। एक मिनट रुकना। 9/5, और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 3/5 इंटू 3, इट्स दिस पोटेंशियल ड्रॉप इज 2Vp/3, 2Vp/3 इज 2/3 Vp, 2/5 आया ये करंट, 2/5, और पोटेंशियल ड्रॉप कितना? 2Vp, तो 2Vp मीन्स 6/5। ठीक है, तो 9/5 माइनस 6/5 इज 3/5। इस पॉइंट का पोटेंशियल आया 3/5, 3/5 प्लस 3/5 इस पॉइंट का पोटेंशियल है, 3/5 माइनस 8/5 इज -1 वोल्ट। इज इट क्लियर? आपने 8 क्यों कर दी दोनों पोटेंशियल? आंसर -1 आएगा कि नहीं आएगा? 3/5 माइनस 8/5 इज -5/5, आउटपुट इज -1। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। ओके।
the value of V and I indicated, अच्छा कितना वैल्यू है? This configuration, I can say this configuration is common anode configuration. और कॉमन एनोड में कौन कंडक्ट करता है? जिसके कैथोड पे जिसके कैथोड पे मिनिमम वोल्टेज हो, और वो मिनिमम वोल्टेज कौन सा है? ये है ना, देखो यहाँ 5 आया, ओपन किया दोनों को, 5 - 3 5 - 5, तो कौन ऑन होगा? जिसके लिए VA माइनस VA हाईएस्ट हो, तो वो ये पोटेंशियल है। तो यहाँ कितना आया? यहाँ आया 3 वोल्ट, और ये 3 वोल्ट आया, तो इसको ऑफ कर देगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि इन कॉमन नोड अरेंजमेंट, जिसके कैथोड पे सबसे मिनिमम पोटेंशियल होगा वो कंडक्ट करेगा। तो बड़ी आसानी से आंसर आ गया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई? I can say the value of I in the figure is I equal to 5 minus 3 divided by 4, which is 2/4, which is half milliampere. Clear है? Okay, what about this? है ना, देखो ये है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फीडबैक सर्किट, है ना, फीडबैक टोपोलॉजी। यहाँ क्या मिक्स हो रहा है? वोल्टेज इज मिक्सिंग, है ना। और वोल्टेज मिक्सिंग को हम बोलते हैं सीरीज मिक्सिंग। देखो इनपुट के साथ फीडबैक सीरीज में लगा है, तो क्या होगा? RIF, द इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक इज ओल्ड RI इंटू 1 + A बीटा। फीडबैक में जो भी वैल्यू इंक्रीज होता है वो 1 + A बीटा से इंक्रीज होगा। और आउटपुट कैसे लिया है आपने? दिस इज वोल्टेज सैंपलिंग, पैरेलल में लिया है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस विल बी R out divided by 1 + A बीटा। अब आप केवल 1 + A बीटा फैक्टर निकाल लो। देखो A कितना है? A इज -100। बीटा कितना दिया हुआ है? बीटा इज -0.1। तो कैन आई से 1 + A बीटा इक्वल टू व्हाट? 1 + 10। 1 + 10 इज व्हाट? 11। तो R इनपुट रेजिस्टेंस इज RI कितना था? 10। 10 into 11, एंड R आउटपुट फीडबैक रेजिस्टेंस इज RO। पहले RO कितना था? 20 किलो ओम, एंड 20 किलो ओम डिवाइडेड बाय 11K। सो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सीरीज शंट टोपोलॉजी। In feedback circuit, this is series and this is shunt. The name of this topology is series shunt topology. क्लियर है यहां तक? यस। अच्छा, अब है ना, अगले 10 दिन हम पढ़ाई का पैटर्न थोड़ा चेंज करेंगे। ना रोज आज क्वेश्चंस कम थे, अब रोज हम है ना सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना, क्वेश्चन से सब्जेक्ट की अप्रोच डेवलप करेंगे, ताकि थोड़ा फायदा मिले, हम एग्जाम में कुछ तो करके आ जाएं ना। यू ऑल आर फ्रॉम थर्ड ईयर, और फाइनल ईयर के लोग हैं, उनका तो प्रिपरेशन होगा, कोई उनका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा, तो फ्रॉम टुमारो वी विल यूज द अप्रोच इन विच वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, जिससे मैं अब ऐसा नहीं करेंगे कि हम वी आर स्टिक टू सम सब्जेक्ट, है ना। उसको ऐसा करेंगे कि मैं सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाऊंगा 1 बाय 1, और उन क्वेश्चंस को पहले हम सॉल्व करेंगे यहाँ, ताकि एक एक माइंडसेट तैयार हो जाए एग्जाम के लिए। इज इट ओके? In 2 hours we can address 20 to 25 क्वेश्चन, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड, है ना। तो एक सब्जेक्ट के लिए 2 दिन भी रख लेते हैं तो काम हो जाएगा हमारा। क्या क्लियर है? आप एग्री करते हैं तो नहीं, अदरवाइज आई कैन गो बाय दिस फर्स्ट थ्योरी देन क्वेश्चंस। मजा आएगा आपको भी कि आप क्वेश्चन से कंसेप्ट को सीखेंगे, है ना। नो थ्योरी, ओनली अप्रोच। ये ठीक है?
ओके, तो कल एक काम करें आप कि कल हम रखते हैं कंट्रोल सिस्टम के लिए, है ना। कल का दिन है कंट्रोल सिस्टम के लिए। आप कंट्रोल के कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज करके आए। हम 20 to 25 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे ऑफ कंट्रोल सिस्टम, है ना। तो वन वन मतलब एक सब्जेक्ट को 2 दिन में कंप्लीट करेंगे हम, आधा कल आधा उस अगले दिन। फिर एनालॉग कंट्रोल सिग्नल हम, है ना, सारे सब्जेक्ट कर लेंगे वन बाय वन, डिजिटल एवरीथिंग। ठीक है ये। हाँ जी बोलिए। आप कंफर्टेबल हैं तो ही होगा ये, ना, नहीं तो ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं। चलो ठीक है। ठीक है, मिलते हैं कल, है ना। कंट्रोल का कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज करके आए। अच्छे क्वेश्चन लाएंगे हम, जो थोड़े से ट्रिकी हो, थोड़े एडवांस हो, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। यू मे लीव नाउ।